Welcome back to my channel. This is part 3 of first reading of Introductory Development Economics. In this part, we will start from point 1.5, The Meaning of Development by Amartya Sen's Capability Approach. So let's start. The view that income and wealth are not ends in themselves but instrument for other purpose goes back at least as far as Aristotle. There is a view of by Aristotle that income and wealth are not ends in themselves. सिर्फ इनकम और वेल्थ एज एन इंस्ट्रूमेंट नहीं देख सकते हम डेवलपमेंट के लिए. अमर्त्य सेन जो कि नोबेल लॉ प्राइज विनर है in economics argues that capability to function is what really matters for status as poor or non-poor. According to Amartya Sen, capability to function, कितनी कैपेबिलिटी है उसकी फंक्शन करने की, वो डिसाइड करता है उसका मैटर ऑफ स्टेटस कि वो पुअर है या नॉन पुअर पर्सन है. As Sen puts it, the expansion of commodity production are valued ultimately not for their own sake but as means to human welfare and freedom. सेंस बताते हैं कि द एक्सपेंशन ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, कोई भी कमोडिटी प्रोडक्शन का एक्सपेंशन है वो वैल्यूड तभी होगा अल्टीमेटली जब ना कि खुद के ओन से, खुद के लिए नहीं वैल्यूड होगा बट ह्यूमन वेलफेयर और फ्रीडम के लिए कोई भी कमोडिटी प्रोडक्शन एक्सपेंशन को वैल्यू किया जाएगा फॉर ह्यूमन वेलफेयर और फ्रीडम के लिए. In fact, Sen argues that poverty cannot be properly measured by income or even by utility as conventionally understood. Sen ये तक भी कहते हैं कि उनकी इनकम और यूटिलिटी से उनकी पॉवर्टी का हम मेजर नहीं कर सकते. मतलब इनकम और यूटिलिटी से पॉवर्टी प्रॉपरली मेजर नहीं की जा सकती, कन्वेंशनली अंडरस्टूड नहीं की जा सकती. Which matters fundamentally is not the thing a person has. माना कि फंडामेंटली मैटर नहीं करती वो और थिंग्स दीज प्रोवाइड्स बट व्हाट अ पर्सन इज और कैन बी और डज और कैन डू. ये चीजें हमें एक फीलिंग प्रोवाइड करवाती है पर्सन क्या है, क्या कर सकता है और डज और कैन डू और क्या था. बट मैटर्स फॉर वेलबींग इज नॉट जस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम as in utility approach, but what use the consumer can and does make of commodities. उन commodities से consumer क्या use कर सकता है, what can and does make of commodities, क्या use कर सकता है और उनसे क्या बना सकता है और further. For example, a book is of title value to an illiterate person, except perhaps as cooking fuel. एक book का illiterate person के लिए एक ही value हो सकता है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है मेनली, तो वैल्यू ये हो सकता है एज अ कुकिंग फ्यूल उसे यूज कर सकता है और एज अ स्टेटस सिंबल. Sen noted a person with parasitic disease will be less able to extract nourishment from a given quantity. एक पर्सन जो पैरासिटिक डिसीज से सफर कर रहा है वो नरिशमेंट लेस एबल टू एक्सट्रैक्ट होगा करने में with a given quantity of food that someone without parasites. To make sense of the concept, human well-being is general and poverty is in particular, we need to think beyond the availability of commodities. हमें commodities के availability के अलावा भी हमें सोचना पड़ेगा human well-being के concept को समझने के लिए and consider their use, उसके use को consider करना पड़ेगा. To address what Sen calls functioning, according to Sen, what is functioning? Functioning is the functioning what people do or can do with commodities of given characteristics that they to possess or control. Functioning is that what people
लोग क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं विद द कॉमोडिटीज ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी कोई कॉमोडिटी की, दैट दे पोजेस टू कंट्रोल, जिसका एक्सेस, जिसका कंट्रोल उनके पास है, उसके साथ वो क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनिंग बाय सेइंग. To address what Sen calls functioning, that is what a person does their use, does or can do with the commodities of given characteristic, with given characteristics that they come to possess or control. Freedom of choice or control of one's own life is itself a central aspect of most understanding of well-being. कोई भी चॉइस करने की फ्रीडम, खुद की लाइफ को कंट्रोल करने की फ्रीडम, ये सिर्फ ये भी सेंट्रल एस्पेक्ट हैं टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेलबींग, वेलबींग को अंडरस्टैंड करने में. अ फंक्शनिंग इज वैल्यूड बीइंग और डूइंग. फंक्शनिंग वैल्यू करता है बीइंग और डूइंग का, बीइंग, वेलबींग, डूइंग, करने का. And in sense view, functioning that people have reason to value can range from being healthy. Functioning vary कर सकता है healthy रहने से, being healthy, being well nourished and well clothed, to being mobile, having self esteem. हेल्दी रहना, नरिश्ड रहना, अच्छे कपड़े पहनना, यहां से लेकर मोबाइल रहना, टू बीइंग मोबाइल, और सेल्फ एस्टीम मेंटेन करना खुद की, और टेकिंग पार्ट इन द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी, ये सब अकॉर्डिंग टू सेन इज फंक्शनिंग. सेन 5 सोर्सेस ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन देते हैं, बिटवीन रियल इनकम और एक्चुअल एडवांटेजेस. जो रियल इनकम है और उसके एक्चुअल एडवांटेजेस है, उनके बीच में 5 सोर्सेस ऑफ डिस्पैरिटी, इनके बारे में सेन बताते हैं. कैपेबिलिटी अप्रोच में सबसे पहले क्या आएगा, इंट्रो आएगा कि नोबेल प्राइज विनर है और इन्होंने कैपेबिलिटी टू फंक्शन की ये थ्योरी दी. उसके बाद आएगा फंक्शनिंग, फंक्शनिंग का क्या प्रोसेस है, उससे पहले ये एग्जांपल देके बताना है. और उसके बाद ये 5 सोर्सेस ऑफ डिस्पैरिटीज बतानी है बिटवीन रियल इनकम और एक्चुअल एडवांटेजेस. सबसे पहले क्या है, पर्सनल हेट्रोजेनिटीज सच एज दोज कनेक्टेड विद डिसेबिलिटी, इलनेस, एज और जेंडर. सबके अलग अलग हेट्रोजेनिटीज हैं, सब अलग है पर्सनली, कि कोई, किसी की एज डिफरेंट है, किसी का, मतलब सबकी डिफरेंट है, ऑब्वियसली सबकी एज सेम नहीं है. तो पर्सनल हेट्रोजेनिटीज ये एक सोर्स ऑफ डिस्पैरिटी है बिटवीन इनकम और एक्चुअल एडवांटेजेस. किसी की एज ज्यादा है, मतलब किसी की एज कम है, फॉर एग्जाम्पल 15, तो उसके खर्चे कम हो गए एज कम्पेयर टू 25 और 35. तो उसके रियल इनकम भी कहाँ है, 15 की एज में वो क्या इनकम कमाएगा, और एक्चुअल एडवांटेजेस, इनमें सबसे पहले है पर्सनल हेट्रोजेनिटीज. उसके बाद है एनवायरमेंटल डाइवर्सिटीज सच एज हीटिंग एंड क्लोथिंग रिक्वायरमेंट्स इन द कोल्ड और इन्फेक्शियस डिसीज इन द ट्रॉपिक्स और द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन. एनवायरमेंटल डाइवर्सिटीज भी डिफर करती हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट. हमें क्लोथ करना होता है, जैसे हीट गर्मियां हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे कपड़े पहनने होते हैं, सर्दियां हैं तो हमें गर्म कपड़े पहनने होते हैं. तो ये सब कुछ मैटर करता है एज अ डिस्पैरिटी बिटवीन इनकम एंड एक्चुअल एडवांटेजेस. एंड द थर्ड इज वेरिएशन इन सोशल क्लाइमेट. सोशल क्लाइमेट में कैसे वेरिएशन है, सच एज प्रेवलेंस ऑफ क्राइम और वायलेंस कितना है किसी सिटी में, सोशल कैपिटल. और फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द फैमिली. इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स मेजर करता है कि इनकम रिसीव्ड बाय अ फैमिली, in a family, because it is the basic unit of shared consumption. कोई भी चीज शेयर हो रही है एज अ कंजम्पशन बिटवीन इन फैमिली, तो सबसे बेसिक है वो इनकम कंज्यूम कर ही रहे हैं. बट फैमिली रिसोर्सेज में बी डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली. जो रिसोर्सेज हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. जैसे कि गर्ल्स को लेस मेडिकल अटेंशन और एजुकेशन मिलती है एज कंपेयर टू बॉयज. Another source of disparity between real income and actual advantages. And the fifth is differences in relational perspective, meaning that the some goods are essential. कुछ goods essential होते हैं क्योंकि वो because of their local customs and conventions. For example, necessary of being able. एडम स्मिथ की फ्रेज है to appear in public without shame.
include higher quality of clothing in higher income countries rather than in low income countries. Low income countries में कोई जरूरत नहीं है कि हम अच्छे खासे कपड़े पहन कर दिखें अगर हमारे पास अच्छे खासे पैसे हैं तो। हायर इनकम कंट्रीज में ये है कि उनको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है तो उनके हायर क्वालिटी की क्लोथिंग पहननी होती है टू अपीयर इन पब्लिक विदाउट शेम। ये है डिफरेंसेस इन रिलेशनल पर्सपेक्टिव, कैसे रिलेशन है किसी के साथ। दैट सम गुड्स आर एसेंशियल बिकॉज ऑफ लोकल कस्टम्स और कन्वेंशन। ये किसी हायर इनकम कंट्रीज का ये कस्टम और कन्वेंशन है कि अगर उन्होंने हाई क्वालिटी क्लोथिंग नहीं पहना तो एज अ वो उनके लिए पब्लिक शेम होगा। In a richer society, the ability to partake in community life without of life would be extremely difficult without certain commodities. Richer society में ability to partake in community would be extremely difficult without certain commodities such as telephone, television or an automobile. कुछ commodities में survive करना मुश्किल है, कुछ communities में survive करना मुश्किल है without commodities। अगर ऐसी कोई कम्युनिटी में रह रहे हैं, हम हायर रिच क्लास है, उसमें अगर हमारे पास टेलीफोन, टेलीविजन, ऑटोमोबाइल ये नहीं है तो हमें वी कांट सर्वाइव इन दैट कम्युनिटी। इट इज डिफिकल्ट टू फंक्शन सोशली इन सिंगापुर और साउथ कोरिया विदाउट एन ईमेल एड्रेस। अगर आप साउथ कोरिया या सिंगापुर में रह रहे हैं तो ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा टू फंक्शन देयर without if you don't have any email address. And minimal housing standard to avoid social disguise also rise strongly with average wealth of the society. इसलिए looking at the real income level or even the level of consumption of specific commodities cannot suffice as a measure of well-being. इसलिए सिर्फ real income और उनका consumption level सिर्फ sufficient नहीं है well-being को measure करने के लिए। One may have a lot of commodities but there are little value. किसी के पास बहुत ज्यादा कमोडिटीज है बट उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, लिटिल वैल्यू है, मतलब कम वैल्यू है। इफ दे आर नॉट व्हाट कंज्यूमर डिजायर, अगर कंज्यूमर को क्या चाहिए वो ही उसके पास नहीं है तो नो मैटर उसके पास कितनी कमोडिटी है, कितनी कमोडिटीज, कितनी चीजें हैं, कितनी वो, तो उनका उसके लिए कोई यूज ही नहीं है अगर कंज्यूमर उसकी डिजायर ही नहीं करता। One may have income but certain commodities essential for well-being such as nutritious food. किसी के पास इनकम है बट सर्टेन कुछ कमोडिटीज बहुत एसेंशियल है वेलबींग के लिए, कमोडिटीज जैसे कि न्यूट्रिशियस फूड में भी अनअवेलेबल, कुछ के लिए ये एसेंशियल कमोडिटीज भी अनअवेलेबल है फॉर वेलबींग, जो कि बहुत एसेंशियल है। Even when providing an equal number of calories, the available staple foods in one country will differ in nutritional content from staple foods in other country. अगर हम इक्वल नंबर ऑफ कैलोरीज का फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज को तो ये भी डिफर कर सकता है कि उस फूड में किसी कंट्री में जैसे कैसावा, ब्रेड, राइस, कनेमल और पोटैटोस हैं, उनका न्यूट्रिशनल कंटेंट डिफरेंस हो सकता है। किसी की क्वालिटी बढ़िया हो सकती है खाने की, मतलब किसी की राइस की क्वालिटी अच्छी है और किसी को अच्छी क्वालिटी के राइस प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो दैट इज डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम स्टेपल इन अदर कंट्रीज। Moreover, even some sub-varieties, for example rice, are much more nutritious than other. वही जो अभी बताया हमने, किसी कंट्रीज में ये ज्यादा मोर न्यूट्रिशियस हो सकती है कंपेयर टू अदर्स। फाइनली, इवन व्हेन कंपेयरिंग एब्सोल्यूट आइडेंटिकल कमोडिटीज, एब्सोल्यूटली आइडेंटिकल मतलब एब्सोल्यूटली सेम कमोडिटीज, वन हैज टू फ्रेम देयर कंजम्पशन इन अ पर्सनल और सोशल कंटेक्स्ट। अगर हम एक सेम कमोडिटी फॉर एग्जांपल राइस को भी कंपेयर करें तो उसका कंजप्शन इन पर्सनल डिफर कर सकता है। सेन प्रोवाइड्स एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ ब्रेड। सेन ब्रेड का एग्जांपल प्रोवाइड करा देते हैं। ये एक मोस्ट बेसिक कमोडिटी है। इट हैज प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके भी प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि टेस्ट कैसा है, न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है एज अ प्रोटीन, and it helps meet convention of social exchange in the sense of bringing bread together. But many of these benefits depend on the person. Person पे भी ये benefit depend करते हैं और उसके circumstances पे भी। कैसे करते हैं ये depend? Such as her activity level. उसका metabolism कितना है, उसका weight कितना है, क्या वो pregnant है और lactating,
और या फिर न्यूट्रिशनल नॉलेज कितनी है उसको, वेदर शी इज इन्फेक्टेड विद पैरासाइट्स, उसको ये पैरासाइट जैसी डिसीज है, या एंड हर एक्सेस टू मेडिकल सर्विस, इन सब पे डिपेंड करता है उसकी बेनिफिट्स। जो ये ब्रेड जैसी कम्युनिटी को कंज्यूम करती है तो उसको जैसे टेस्ट कैसा लगेगा, उसका न्यूट्रिशन एज अ प्रोटीन कितना मिलेगा उसको, ये सब इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि वो पर्सन टू पर्सन उनकी सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि वो मेटाबॉलिज्म कितना है, उसका वेट कितना है, उसका अगर वेट ज्यादा है ऑलरेडी, अगर वो ब्रेड को कंज्यूम करेगी तो उसका और वेट बढ़ेगा। वेदर शी इज प्रेग्नेंट, या फिर न्यूट्रिशन नॉलेज कितना है उसको, वेदर शी इज इन्फेक्टेड विद पैरासाइट्स, इन सब पे डिपेंड करता है। सेन गोज ऑन टू नोट दैट फंक्शनिंग डिपेंड्स ऑल्सो ऑन फंक्शनिंग, फोर अदर फैक्टर्स है जिन पे भी डिपेंड करता है, सच एज सोशल कन्वेंशन इन सोशल कन्वेंशंस इन फोर्स इन द सोसाइटी इन विच द पर्सन लिव्स। सोशल कन्वेंशन कैसा है, कि जिस भी सोसाइटी में वो पर्सन रह रहा है। द पोजिशन ऑफ पर्सन सोशल कन्वेंशन इन मीन्स सोशली कैसा वो अदर पीपल के साथ मिलता है, कैसे उसका क्या बिहेवियर है, क्या उसका वो है सोसाइटी में, इस पे भी डिपेंड करता है। द पोजिशन ऑफ पर्सन इन फैमिली एंड इन सोसाइटी, पोजिशन क्या है पर्सन की उसकी फैमिली में और ऑल्सो इन सोसाइटी। द प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ फेस्टिविटीज, उसकी फेस्टिविटीज में कितनी प्रेजेंस है, कितनी एब्सेंस है, क्या वो मैरिजेस अटेंड करता है, क्या वो सीजनल फेस्टिवल्स अटेंड करता है, और अदर ओकेजन सच एज फ्यूनरल वो अटेंड करता है या नहीं करता, इन पे भी डिपेंड करता है फंक्शनिंग एज पर सेम। फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम होम्स ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कितना दूर रहता है वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से, कितना दूर है उसका घर, या पेरिफेरी पे है और उसके रिश्तेदार और फ्रेंड्स रहते हैं सेंटर में, या फिर वो सेंटर में रहता है और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स पेरिफेरी में रहते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है फंक्शनिंग एज पर सेम। In part, because such favors, even on so basic a matter as nutrition, can vary so widely among individual, measure individual well-being by levels of consumption of goods and services. In part, ये factors जो कि basic as a matter of nutrition, ये भी वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फॉर वेलबींग को मेजर करने के लिए, और उनका लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज obtained confuses the role of commodities by regarding them as ends in themselves rather than as as means to an end. In case of nutrition, end is health. न्यूट्रिशन के केस में एंड क्या उसका कंक्लूजन हो सकता है, वो है हेल्थ। हेल्थ एट द एंड ऑफ द डे कितना न्यूट्रिशन लिया उससे इसकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट है, क्या वो और अच्छी हुई है या फिर उससे भी ज्यादा खराब हुई जो उसने कंज्यूम किया है उससे। व्हाट वन कैन डू विद गुड हेल्थ, गुड हेल्थ से क्या कर सकता है, एज वेल एज पर्सनल इंजॉयमेंट एंड सोशल फंक्शनिंग। Indeed, the capacity to maintain valued social relationship and to network leads to what James Foster and Christopher Hanley have termed external capabilities. जेम्स फोस्टर और क्रिस्टोफर ने एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज का कंसेप्ट दिया। उसमें क्या है, विच आर एबिलिटीज टू फंक्शन दैट आर कन्फर्ड विद बाय डायरेक्ट कनेक्शन और रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन। डायरेक्ट रिलेशन कैसा है उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग विद अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल capabilities according to James Foster and Christopher Henry. But measuring well-being using the concept of utility in any of its standard definition does not offer enough of improvement over measuring consumption to capture the meaning of development. As sense stresses, a person's own valuation of what kind of life would be worthwhile is not necessarily the same. According to Sen, person की खुद की वैल्यूएशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वुड बी वर्थवाइल, कैसी लाइफ वर्थ होगी उसके लिए, इज नॉट नेसेसरी द सेम एट व्हाट गिव्स प्लेजर टू दैट पर्सन। उसकी वैल्यूएशन की लाइफ कितनी वर्थवाइल है ये जरूरी नहीं है कि उसी पे डिपेंड करे कि उससे उस पर्सन को कोई भी एक्टिविटी करने में प्लेजर कितना मिल रहा है। अगर इफ वी identify utility with happiness,
यूटिलिटी को हैप्पीनेस से आइडेंटिफाई किया जाए इन पर्टिकुलर वे, देन वेरी पुअर पीपल कैन हैव वेरी हाई यूटिलिटी। इसके हिसाब से तो गरीब लोगों के पास भी ज्यादा यूटिलिटी हो सकती है। देखा आपने, गरीब लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कई अमीर लोग भी इतने खुश नहीं होते। इसलिए अगर यूटिलिटी को हैप्पीनेस से देखा जाए तो पुअर पीपल भी, उनकी भी वेरी हाई यूटिलिटी है। Sometimes even malnourished people either have a disposition that keeps them feeling rather blissful. Malnourished people की कई बार ऐसे डिपोजिशन में उनकी फीलिंग होती है जो कि उन्हें blissful or have learned to appreciate greatly any small comforts than they can find in life, such as breeze on a very hot day. कुछ malnourished people को भी इन उनकी ऐसी कंडीशंस में भी उनको भी ऐसी फीलिंग आ सकती है जो ब्लिसफुल हो। जैसे कि बहुत ज्यादा कड़ाके की गर्मी है और उसमें अगर ठंडी हवा चल गई तो उनके लिए वो ही कंफर्ट लेवल है, उनके लिए वही हैप्पीनेस है। और हैप्पीनेस को अगर यूटिलिटी से मेजर किया जाए तो वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई यूटिलिटी कंज्यूम कर रहे हैं। सो टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट बाय स्ट्राइविंग ओनली फॉर व्हाट सीम्स अटेनेबल, indeed it is only too human to tell yourself that you do not want the things you cannot have. At the end of the day हम भी इंसान ही हैं, हम भी खुद को हम भी वही चाहेंगे जो हमारे पास नहीं है मेनली, और जो हम पाना चाहते हैं और जो हमारे आउट ऑफ रीच है, ऐसी चीजें हम चाहेंगे। If there is really nothing to be done about a person's deprivation, this attitude of subjective bliss would have undoubted advantages in a spiritual sense. But it does not change the objective reality of deprivation. In particular, such an attitude would not prevent the contented but homeless poor person from greatly valuing an opportunity to become freed of parasites or provided with basic shelter. इन पर्टिकुलर ऐसा एटीट्यूड नोट उनको प्रिवेंट नहीं करता है कि वो होमलेस भी हैं, उनके पास घर नहीं है, गरीब हैं, फिर भी वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को वैल्यू करेंगे जो उन्हें पैरासाइट्स जैसी बीमारी से फ्री कर दे और उनको बेसिक शेल्टर प्रोवाइड कराए। इन कॉन्ट्रास्ट, अ पर्सन हु इज सिक्योर इन देयर एंटाइटलमेंट टू फुल नरिशमेंट may decide to fast for नॉन मटेरियल रीजंस। एक पर्सन जिसके पास सब कुछ है, वेल नरिश्ड है, वो डिसाइड करेगा कि आज वो भूखा रहेगा, फास्ट करेगा फॉर नॉन मटेरियल थिंग्स रीजंस। फ्रीली चूजन फास्टिंग इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम लिविंग विद malnutrition। एक पर्सन जो खुद उसने चूज किया है कि आज वो फास्टिंग करेगा, इस फंडामेंटली बिल्कुल डिफरेंट है कि जो पर्सन माल न्यूट्रिशन या भूख मरीज से के साथ अपना जीवन जी रहा है। कंसिडर फंक्शनिंग एज द रिजल्टिंग फ्रॉम चॉइसेस। अगर फंक्शनिंग को एज अ रिजल्ट किया जाए फ्रॉम चॉइसेस गिवन कैपेबिलिटीज, फंक्शनिंग को चॉइसेस से रिजल्ट किया जाए विद गिवन, मतलब फंक्शनिंग का एज अ रिजल्ट होना चाहिए कि उसके एक पर्सन के पास क्या कैपेबिलिटीज है और उससे वो क्या चॉइसेस ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वेल नरिश्ड पर्सन है तो वो फास्ट करने का डिसाइड करता है, ये उसके पास चॉइस है अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटीज होते हुए भी ये उसकी चॉइस है कि वो आज करेगा। तो फंक्शनिंग इस पर डिपेंड करना चाहिए कि रिजल्टिंग फ्रॉम चॉइसेस गिवन कैपेबिलिटीज। द फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन इज एन अचीवमेंट। कोई भी पर्सन की फंक्शनिंग उसकी अचीवमेंट है। सेन प्रोवाइड्स द एग्जांपल ऑफ बाइसाइक्लिंग। वो बाइसाइक्लिंग का एग्जांपल प्रोवाइड कराते हैं। उसमें क्या होता है, बाइसाइक्लिंग हैज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पोजेसिंग अ बाइक। बाइसाइक्लिंग अलग होगा अगर एक अनदर पर्सन के पास बाइक है उससे। इट हैज टू बी डिस्टिंग्विश्ड आल्सो फ्रॉम हैप्पीनेस। हैप्पीनेस से भी डिफरेंस होगा। Generated by bicycling, a function is thus different from having goods and having utility। एक फंक्शनिंग डिफरेंट होती है दोनों चीजों में कि गुड्स क्या क्या है और यूटिलिटी क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन के पास बाइसाइकिल है, एक के पास बाइक है, दोनों डिफरेंट गुड्स है एंड द कोरोस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है टू विच इट इज पोस्टीरियर। इस पे डिपेंड करता है। हैविंग यूटिलिटी,
यूटिलिटी डिफरेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन के पास बाईसाइकिल है, वो उसमें भी खुश है, और जबकि एक पर्सन के पास बाइक है, वो उससे भी खुश नहीं है। तो डिपेंड ऑन यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस रिजल्टिंग फ्रॉम दैट फंक्शनिंग to which it is an important way prior. To clarify this point, in his acclaimed 2009 book, The Idea of Justice, Sen suggest करता है कि that subjective well-being is a kind of psychological state of being. जो subjective well-being है, वो psychological state of being है, एक functioning that could be pursued alongside with other functioning such as health and dignity. Subjective well-being फंक्शनिंग है जो कि हेल्थ और डिग्निटी जैसी फंक्शनिंग के साथ साथ परस्यू किया जा सकता है। इन नेक्स्ट सेक्शन वी रिटर्न द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस एज अ डेवलपमेंट आउटकम। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे हैप्पीनेस एज अ डेवलपमेंट आउटकम इन सेंस दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कन्वेंशनल यूटिलिटी से कैसे हैप्पीनेस एज अ डेवलपमेंट अलग है। सेन डिफाइन करता है कैपेबिलिटीज को। अब जब से हम कैपेबिलिटीज कर रहे हैं, बट इस कैपेबिलिटीज अकॉर्डिंग टू सेन, द फ्रीडम दैट पीपल हैव, वो फ्रीडम जो किसी पर्सन के पास है इन टर्म्स ऑफ द चॉइस ऑफ फंक्शनिंग, द फ्रीडम, ऐसी फ्रीडम जो किसी पर्सन के पास है इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ फंक्शनिंग has given his personal features, conversion of characteristics into functioning, and his command over commodities. Capabilities according to Sen, कोई भी पर्सन की फ्रीडम टू चूज फंक्शनिंग। फॉर एग्जाम्पल, वेल नरिश्ड पीपल ने फास्ट करने का डिसीजन लिया, चॉइस ली, तो ये उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। द चॉइस ऑफ फंक्शनिंग, उसके पास फ्रीडम थी चॉइस ऑफ फंक्शनिंग की, गिवन डिपेंड ऑन हिज पर्सनल फीचर्स, उसके पर्सनल फीचर्स क्या है और उसकी कमांड ओवर कमोडिटीज क्या है, इस पे डिपेंड करता है कैपेबिलिटीज। द फ्रीडम, ऐसी फ्रीडम जो पर्सन के पास है इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ फंक्शनिंग को चूज करने में, गिवन हिज पर्सनल फीचर्स एंड हिज कमांड, उसके पर्सनल फीचर और कमांड ओवर कमोडिटीज के मुताबिक वो पर्सन के पास चॉइस ऑफ फ्रीडम फंक्शनिंग करने की फ्रीडम क्या है, उसे ही कैपेबिलिटीज कहा गया है। Sen's perspective helps explain why development economists have placed so much emphasis on health and education. Sen का पर्सपेक्टिव ये बताने में हेल्प करता है कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो थे वो क्यों इतना एम्फेसिस करते थे हेल्थ और एजुकेशन पे, एंड मोर रिसेंटली वो सोशल इंक्लूजन और एम्पावरमेंट पे भी, और and have referred to the countries with high level of income but poor health and education standards as cases of growth without development. ऐसी कंट्रीज जिनके हाई लेवल ऑफ इनकम तो है बट उनकी हेल्थ और एजुकेशन बहुत पुअर है, ऐसी कंट्रीज को सेन कहते हैं ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। ग्रोथ तो कर रहे हैं वो, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही, उसके लिए उनको हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में काफी काम करने की जरूरत है। रियल इनकम इज एसेंशियल, माना कि रियल इनकम एसेंशियल है, बट टू कन्वर्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमोडिटीज इनटू फंक्शनिंग, कमोडिटीज की कैरेक्टरिस्टिक को फंक्शनिंग में कन्वर्ट करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि शो उनकी हेल्थ एंड एजुकेशन भी अच्छे से मेंटेन हो, और वो भी एसेंशियल है इनकम के साथ साथ। The role of health and education ranges from something to basic as the nutritional advantages. जो एजुकेशन और हेल्थ का रोल है वो एक बेसिक न्यूट्रिशनल एडवांटेज से लेकर ग्रेटर पर्सनल एनर्जी तक रेंज करता है। That are possible when one lives free of parasites. वो तभी पॉसिबल हो सकती है, न्यूट्रिशनल एडवांटेज और पर्सनल एनर्जी की ये जो टर्म्स है ये तभी अचीव हो सकती है जब एक पर्सन फ्री ऑफ पैरासाइट है, पैरासाइट से फ्री है, और टू एक्सपेंडेड एबिलिटी टू अप्रिशिएट द रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, और वो अपनी एबिलिटी को एक्सपेंड करने में और रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ को अप्रिशिएट करने में एबल है विद अ ब्रॉड एंड डीप एजुकेशन।
इसमें दो आ गए, एजुकेशन एंड हेल्थ। पीपल लिविंग इन पोवर्टी are often deprived, at times deliberately, of capabilities to make substantive choices and to take valuable action. Often the behavior of the poor can be understood in that light. ऐसे लोग लिविंग इन जो गरीबी में जी रहे हैं वो डिप्राइव्ड है एट टाइम्स ऑफ डेलिबरेटली ऑफ कैपेबिलिटीज जैसी टर्म से वो डिप्राइव हैं, वो चॉइस नहीं कर सकते फंक्शनिंग में। मतलब उनके पास ये चॉइस नहीं है कि वो आज वो फास्टिंग कर रहे, उनकी फास्टिंग हो ही जाती है। अगर एक दिन का खाना उनको नहीं मिलेगा, वो उनके लिए फास्टिंग ही है, तो बट वो उनकी चॉइस नहीं है। सो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फंक्शनिंग टू मेक सब्सटेंसिव चॉइसेस एंड टू टेक वैल्यूएबल एक्शन। सब्सटेंसिव चॉइसेस और वैल्यूएबल एक्शन लेने में वो डिप्राइव है। एंड उनका बिहेवियर ऑफ पुअर कैन बी अंडरस्टूड इन दैट लाइफ, तो उनका बिहेवियर उस लाइफ में अंडरस्टूड किया जा सकता है। फॉर सेन के लिए वेलबींग मीन्स बीइंग वेल सेन के लिए वेल बीइंग का मतलब है बीइंग वेल, अच्छे से रहना। अच्छे से रहने में उसके लिए इनके लिए हेल्थ और एजुकेशन। बेसिक सेंस ऑफ बीइंग हेल्दी, वेल नरिश्ड, वेल क्लोथ, लिटरेट एंड लॉन्ग लिव्ड, एंड मोर ब्रॉडली बीइंग एबल टू टेक पार्ट इन द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी, being mobile, being physical secure, and having freedom of choice in what man can become or can do. Human, according to Sen, human तभी well-being है अगर उसके पास बेसिक सेंस ऑफ बीइंग हेल्दी, अगर वो वेल नरिश्ड है, वेल क्लोथ है, लिटरेट है, पढ़ा लिखा हुआ है, लॉन्ग लाइफ जी रहा है, और मोर ब्रॉडली वो कम्युनिटी की लाइफ में पार्ट ले रहा है। ये वही ह्यूमन सेन के अकॉर्डिंग वेल बीइंग में कंसिडर किया जाना चाहिए। सेंस फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ दैट डेवलपमेंट इज बोथ ऑफ फिजिकल रियलिटी एंड स्टेट ऑफ माइंड। सेन के फ्रेमवर्क में डेवलपमेंट दोनों है, फिजिकल रियलिटी और स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड कैसे? इन विच द मीन्स फॉर obtaining a better life are secured following at least 3 objectives. State of mind with 3 objectives. Objective क्या है? Increasing the availability and widening the distribution of self-sustaining goods such as food, shelter, health and protection. सबसे पहले है increasing the availability and widening the distribution of life-sustaining goods. ऐसे गुड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाना और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना जो लाइफ सस्टेनिंग है। लाइफ सस्टेनिंग गुड्स में क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन। रेजिंग लेवल्स ऑफ लिविंग जीवन जीने के जो लेवल्स हैं उनको रेज करना। वो कैसे होंगे? उसमें क्या आता है? इंक्लूडिंग हायर इनकम, प्रोविजन ऑफ जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड ग्रेटर अटेंशन टू कल्चर एंड ह्यूमन लाइफ to enhance material well-being and generate greater self-esteem. Third क्या है? Expanding the range of economic or social economics or social choices को expand करना हर इंडिविजुअल के लिए, and nations by freeing them from servitude. और नेशन उनको सर्विट्यूड से फ्री करे और डिपेंडेंस उनकी अदर पीपल, किसी और आदमी पर और किसी और पर्सन पर और किसी नेशन पर उनकी डिपेंडेंस खत्म करे, टू इग्नोर एंड ह्यूमन मिजरी को भी वो खत्म करे। अदर पर्सपेक्टिव, अदर्स कुछ इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग सच एज डडली सीयर्स एड्रेस द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट स्क्रीनिटी in 1969 asking rhetorically क्वेश्चन आस्क करते हुए डेवलपमेंट का मीनिंग बताते हैं। what has been happening to poverty, what has been happening to unemployment, what has been happening to inequality. ये according to Dudley Sears development, all three of these क्या poverty, unemployment और inequality have declined from high levels से decline करने लगे। then beyond doubt this has been a period of development. जब poverty, unemployment और inequality डिक्लाइन करने लग जाएं फ्रॉम हाई लेवल से, तो देयर इज नो डाउट कि ये एक पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री में। इफ वन और टू ऑफ दीज सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैव बीन ग्रोइंग वर्स, अगर इनमें से एक या दो भी ग्रो कर रहे हैं वर्सली,
especially if all three have it, especially जब तीनों rise कर रहे हो, it would be strange to call the result of development even if per capita income doubled. अगर income, poverty, unemployment और inequality इनमें से एक या दो, ये स्पेशली तीनों जब ग्रो कर रहे हो, तो ये बहुत स्ट्रेंज होगा उसको डेवलपमेंट कंसिडर करना, तो उसको डेवलपमेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा इवन इफ पर कैपिटा इनकम डबल्ड। अगर इनकम डबल हो रही है तो भी उसको डेवलपमेंट नहीं किया कहा जाएगा जब पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी जैसी सिचुएशन बढ़ रही है। ये अकॉर्डिंग टू दिल्ली सीओएस था। अब अकॉर्डिंग टू डेनियस गॉलेट in 1971, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज legitimized as a goal because it is an important, perhaps even an indispensable way of gaining esteem. डेवलपमेंट इस लेजिटिमाइज्ड गोल है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और इंडिस्पेंसिबल वे ऑफ गेनिंग स्टीम, स्टीम गेन करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंडिस्पेंसिबल वे है। अब Sain's invaluable framework is also more systematic and builds on contribution of development thinkers who went before him. जो सेन से पहले डेवलपमेंट थिंकर्स गए हैं उनसे सेन का फ्रेमवर्क कैसे डिफरेंट है? सेन का फ्रेमवर्क एक सिस्टमेटिक और कंट्रीब्यूशन बिल्ड करता है फॉर द डेवलपमेंट। Nobel laureate in economics W. Arthur Levish stressed the relationship between economic growth and freedom from servitude when he concluded that the advantage of economic growth is not the wealth increases happiness, but that it increases the range of human choice. W. Arthur Levish स्ट्रेस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, रिलेशनशिप की बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड, सर्विस करने की फ्रीडम को के बीच के रिलेशनशिप को एज अ कंक्लूड करके बताते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ का एडवांटेज लेते हुए वेल्थ इंक्रीज, अगर वेल्थ इंक्रीज हुई तो हैप्पीनेस इंक्रीज हो, ये नहीं, बट इंक्रीज द रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइस, ह्यूमन चॉइस की रेंज को इंक्रीज करना डेवलपमेंट है उनके अकॉर्डिंग। लेविश पॉइंट इज अ क्वेश्चन अगेंस्ट फेटिशिंग इनकम ग्रोथ ऑफ और थिंकिंग ऑफ यूटिलिटी इज डिपेंडिंग ओनली ऑन इनकम। लेविश का जो पॉइंट है वो एक क्वेश्चन है अगेंस्ट फेटिशिंग इनकम ग्रोथ को फेटिश करना और ये सोचना कि यूटिलिटी सिर्फ इनकम पे डिपेंड करती है। इसके अगेंस्ट लेविश का ये पॉइंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन चॉइस को इंक्रीज करना चाहिए, रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस को इंक्रीज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेविश। और अकॉर्डिंग टू हिम, ऑफ कोर्स दिस डज नॉट मीन हैप्पीनेस इज अनइम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं कि हैप्पीनेस अनइम्पोर्टेंट है, हैप्पीनेस भी इंपॉर्टेंट है, और दैट पीपल वुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग चॉइसेस दैट इम्प्रूव देयर हैप्पीनेस। अगर सिर्फ ये कंसिडर किया जाए कि इनकम से ही हैप्पीनेस गेन होगी, ये सोचना बिल्कुल गलत है। बट अकॉर्डिंग टू हिम हैप्पीनेस एक अनइम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। अगर उसको किसी पर्सन को चॉइस मेक करने को मिलेगी तो उसकी हैप्पीनेस में इंप्रूवमेंट आएगी, उसकी हैप्पीनेस बढ़ेगी। हैप्पीनेस इज अ की कंसर्न फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू आर्थर लेविश। ये डिफरेंट इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव है फॉर डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज happiness and development. Happiness and development, and then the last is sustainable goals. Happiness and development is our last. We will discuss this topic in next video. Thank you for watching my video.